Hello students, welcome to Asian School of Science e-learning platform. I am educator Santosh Kumar Initiati, 18 years of teaching experience in IIT JEE. So today we are going to discuss 11th Mathematics Theory of Equations lecture number 4. Let us start. I think this was lecture number 3 I think. Okay, so it was by mistake, it was lecture number 3. So let us start. Example 1. See, one root of this quadratic equation is square of other. Then what is the value of k? So in 10th standard and in my previous lectures, you studied about relation between coefficients and roots. If roots are alpha and beta, then sum of the roots will be minus b by a and product of the roots will be c by a. That relation already you studied in 10th standard as well, 11th standard also. In previous lectures you have done. Okay, now here what is the question? One root of this quadratic equation is square of other. Means if I take one root as alpha, then other root should be alpha square. Means in place of beta you need to put alpha square. So let us see. So here I have given hint alpha and alpha square, you need to take the roots, and after taking the roots just solve it, you will get the answer. So by passing this video, so you could try this question at home. Okay, so let us see the solution. देखो बेटा, so इधर इसका रूट्स मैंने लिया अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. ठीक है, so sum of the roots alpha plus alpha square is minus b by a, that is here a value 1, b value k and c value 27. So minus b by a means minus k upon 1. Okay, so product of the roots will be alpha into alpha square is equal to c by a, c value 27, a value 1, that is directly 27. So here alpha into alpha square become alpha cube, 27 means 3 cube. From this you will get alpha value as 3. Okay, now you substitute this 3 value in this equation. See here alpha value if you replace with 3, so 3 plus 3 square, that is, see I am substituting alpha value in this equation. 3 plus 3 square is equal to minus k. So 3 square is 9 plus 3, that is 12. K value will be minus 12. Okay, so now see one more question. Here they have given a quadratic equation. What is the relation they have given? So one root of the quadratic equation is twice the other. So actually there are shortcut formulas are there. So if one root is square of other means one root is nth root of other, one root is n times the other. In previous lecture we have studied the relation between the roots. For example, if roots are in the ratio m:n, there is a formula m plus n into b square is equal to mn into b square is equal to m plus n into ac, like that formula was there. So you studied in previous lecture, just go through my previous lecture. Okay, so right. Now see here the value of a if one root is twice the other. So if you don't remember the formula, general method is there. So if roots are given, one root is alpha, then twice the other means, so another root will be 2 alpha. Based on this relation also you can find out the question whatever they are asking. So here roots are alpha and 2 alpha. So let us start. So here the equation is given, one root is the double, so roots we have taken alpha and 2 alpha. So sum of the roots I am taking alpha plus 2 alpha, that is minus b by a. See here sum of the roots will be minus b by a. So minus of 3a minus 1 I am writing as 1 minus 3a upon a square minus 5a plus 3. So alpha plus 2 alpha become 3 alpha. So 3 alpha value as it is. I am taking this 3 into denominator. So alpha value you got 1 minus 3a upon 3 into a square minus 5a plus 3. Now product of the roots c by a, that is c value 2 into 2 upon a entire value. So see here product of the roots alpha into 2 alpha is equal to c upon this entire thing. So 2 alpha square value you got this. So 2 to get cancelled, alpha square value is this. Now replace this alpha value in this second equation. See here in place of alpha, see here in place of this alpha I am replacing this entire value. So 1 minus 3a upon 3 into a square minus 5a plus 3 whole square is equal to right side as it is. Now if you expand this numerator 1 minus 3a whole square, that is a plus b whole square formula, yeah, a minus b whole square formula.
a square plus b square minus 2ab, that is minus 6a, upon here 3 is there, 3 square will be 9, here a square minus 5a plus 3 whole square you will get. So here one term will get cancelled on the denominator on both the sides. So now you will get 1 plus 9a square minus 6a upon 9 into a square minus 5a plus 3 is equal to, this one term get cancelled, right side becomes 1. Now take this term this side, simplify. So 1 plus 9a square minus 6a is equal to, this entire term will go to the right side in the numerator. So if you simplify, so here 9a square minus 45a plus 27, 9 से multiply करने का इधर, और 9a square will cancel both the side. So you will get 39a is equal to 26, a value 26 by 39, that is 13 2s are 13 3s are. So a value you got 2 upon 3. Okay, now let us see. Here the value of a same, difference between the roots. So already I gave the formula for the difference between the roots. So if roots are alpha and beta, then difference between the roots is taken as modulus of alpha minus beta is equal to under root of discriminant, that is b square minus 4ac upon mod a. So this formula already I have discussed in last lecture. So now see, here alpha beta roots, then they have given alpha minus beta is equal to 3. So with this hint, we need to find out the value of a. So here options are 3 minus 3, 2 minus 2. So we should get the answer 3. So if you want, you can try by pausing the video. Okay. Now see, roots alpha beta, difference of the roots 3. That is mod alpha minus beta is 3. So mod alpha minus beta formula, this is under root of b square minus 4ac upon mod a. So mod alpha minus beta value they have given 3 is equal to under root of, see, in place of a we have a minus 2, in place of b we have minus a minus 4, in place of c we have minus 2. So replace all the values. देखो b square मतलब इसका स्क्वायर माइनस को स्क्वायर का तो प्लस ही हो जाएगा, a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज लिखा, a की जगह पे a माइनस 2, c की जगह पे माइनस 2 रख दिया. अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो ये a माइनस 2 को इधर लाया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर कर दिया, इधर रूट है स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 9, a माइनस 2 को स्क्वायर लगेगा. सो a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका रूट चले गए तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज प्लस 8 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर दे आगे, देखो इसको एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 8a प्लस माइनस 16, देखो प्लस 8a माइनस 8a प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, इधर आ जाएगा 9a स्क्वायर है, इधर एक स्क्वायर इधर लाए तो 8a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, माइनस 36 है प्लस 36, इसमें से 4 कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9, इसको फैक्टराइज करो सिंपल सी. सो फैक्टर्स आएगा 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 3, ए वैल्यू आपको मिलेगा 3 एंड 3/2. ओके, सो जो आंसर ऑप्शंस में है वो उसको कंसिडर करने का. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये है दिया है हैज द रूट्स विच आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या लेने का, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट रेसिप्रोकल मतलब 1 अपान अल्फा, बस बहुत सिंपल है. चलो इसको आगे बढ़ देखते हैं. वन रूट, तो रूट्स क्या लेने का, अल्फा एंड 1 अपान अल्फा. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करो तो क्या आएगा, आपको 1 आ जाएगा. देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये याद रखना कभी भी 1 रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब सी वैल्यू एंड ए वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 होना चाहिए, मतलब सी बाई ए वैल्यू 1 होना चाहिए, तो सी इज इक्वल टू ए होना चाहिए. सिंपल सी लॉजिक है. सो 2k प्लस 1 और k प्लस 2 सेम होना चाहिए. देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया सी अपॉन ए, सो 1 इज इक्वल टू k प्लस 2 बाई 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2, इससे k वैल्यू बनेगा 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब देखो 1 रूट ऑफ दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, जैसे आपने पिछले बार हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, 1 रूट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नेगेटिव मतलब एडिटिव इनवर्स. सो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ए सी सेम होना चाहिए, और एक दूसरे का नेगेटिव है मतलब अल्फा माइनस अल्फा है तो बी वैल्यू 0 होना चाहिए. बी मतलब इधर जो एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट है, ए वैल्यू 0 होना चाहिए. अब देखते हैं, एक रूट लेंगे अल्फा, दूसरा रूट लेंगे माइनस अल्फा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 0, दैट इज 2k माइनस 4 होना चाहिए 0. तो k वैल्यू सीधी सी बात है, k वैल्यू आ जाएगा आपको, सॉरी इधर 4 था, सॉरी इधर 4 लेना था,
ओके 4/2 k वैल्यू 2 आ जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, इसको चेंज करना बेटा। 2k - 4 है तो 2k - 4 = 0 लिए तो क्या आएगा आपको, k = 2 आएगा। ओके सो इधर 1/2 गलत आया, इसको इधर 4 होना था तो मिसप्रिंट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक्चुअली जेडब्ल्यू का जो 2019 से पहले वाला क्वेश्चंस में कंपलसरी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के डिपेंड के क्वेश्चन आता था। अभी फिलहाल तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकता है। सो इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है, आपको डाटा देगा, उसमें ऐसा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देगा, और ऊपर डाटा दे सकता है नहीं भी दे सकता है। तो इधर स्टेटमेंट 1 भी दिया, स्टेटमेंट 2 भी दिया, तो हमारा को चेक करने का कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो सकता है, या स्टेटमेंट 2 को मैंने स्टेटमेंट 1 में यूज कर सकता हूँ, ऐसा कंडीशन से। सो इधर देखो एक फंक्शन दिया है, इसका डोमेन पूछ रहे, देखो इधर डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन इज गिवन बाय -1 to infinity -b/2a वेयर a ग्रेटर देन 0 दिया है। ओके और b² - 4ac = 0 दिया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, b² - 4ac 0 मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कब 0 हो जाएगा, रूट्स इक्वल है तो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब ये कंडीशन हमने इसमें यूज करे नहीं करे वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो ये लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये जो लॉग के अंदर फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए ना नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, देखो ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो इसका कोफिशिएंट देखो, अपने 10th क्लास में एक आता है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से सारे कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो 1 इज ए रूट या x - 1 इज ए फैक्टर। अभी इवन पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स का सम ऑड पावर्स ऑफ x का कोफिशिएंट का सम सेम है तो -1 रूट हो जाएगा। अब देखो इधर इधर देखो ये ऑड पावर है, देखो a भी ऑड पावर है, ये दोनों का सम देखो a प्लस इधर ये है इधर b + c है, तो टोटली आपको क्या आएगा a + b + c आएगा। देखो इधर ये था इधर b + c, ऑड टर्म्स का मतलब ऑड पावर्स ऑफ x a + b + c। और इवन पावर्स देखे तो इधर a + b है इधर c है, कांस्टेंट टर्म इज टेकन एज इवन पावर ऑफ x। सो इसका सम और ये दोनों का सम सेम आया, मतलब -1 इज ए रूट होना चाहिए, मतलब x + 1 इज ए फैक्टर होना चाहिए। तो इसको हमने x + 1 से डिवाइड कर दिया, तो देखो x + 1 से डिवाइड कर दिया, नॉर्मल आप डिवीजन करो तो डिवीजन करे तो एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ए क्वोशंट आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखो ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ओके ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब वेन एवर रूट्स आर इक्वल इट कैन बी रिटन एज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो जो इक्वल रूट जो होता है -b/2 ये होता है। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में x = -b + r - √b² - 4ac/2a, उसमें डिस्क्रिमिनेंट को हटा दो, तो हटा है तो आपको क्या आएगा x वैल्यू -b/2a, यही रूट दो बार आएगा। तो ये पूरा इक्वेशन को हमने ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा इक्वेशन को हमने ऐसा लिख सकते हैं x + a इंटू x + 1 इंटू x + b/2a का होल स्क्वायर। और इधर b/2a का होल स्क्वायर है तो हमने क्या किया, नीचे 4a² ऐसा कुछ कॉमन आएगा, उधर क्वेश्चन में भी दिया है a ग्रेटर देन 0, तो उसका इधर हमने यूज करके x + 2a का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इधर नीचे 4a² आएगा, एक्चुअली इधर देखो एक ही a है, इधर आप एलसीएम लिए तो 2a हो जाएगा, ओके। तो मतलब हमने 2 से या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, नीचे 4a², तो वो ए का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए पॉजिटिव नंबर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए नेगेटिव है तो फर्क पड़ता है, और इधर ये क्वेश्चन में दिया है ए पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है ये देखो ये ऑलरेडी परफेक्ट करे तो हमेशा पॉजिटिव, सिर्फ आपको ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ये कब पॉजिटिव होगा, -1 से ऊपर वैल्यू रखे तो, -1 के ऊपर वैल्यू रखे तो, और ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कब 0 होगा, x के जगह पे -b/2 ये रखे तो। सो देखो ग्रेटर देन 0 होना है तो 0 नहीं होना और नेगेटिव नहीं होना,
ये पॉजिटिव कब होगा, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव था परफेक्ट उसका रहे तो अभी पॉजिटिव के लिए देखना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, एक्स वैल्यू -1 से ऊपर है तो ओके, -1 नहीं लेने का। और ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है बट जीरो नहीं होना, तो एक कब जीरो होगा, -b/2 ये रखे तो सो -b/2 ये नहीं रखना। सो अल्टीमेटली आपको क्या हो गया, हमारा जो डोमेन है मतलब एक्स वैल्यू -1 टू ऊपर, -1 से शुरू करके इन्फिनिटी तक, और उसमें -b/2 ये नहीं होना चाहिए। देखो ये -b/2 ये जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि -b/2 ये लिए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जो डोमेन आता है उसमें से -b/2 ये हटाना पड़ेगा, हटा दिया। सो ये डोमेन होगा, तो क्वेश्चन में भी यही दिया है। सो ये स्टेटमेंट 1 बराबर है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 वो भी बराबर है, उसको हमने इधर यूज किया। देखो इधर हमने यूज किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल ले लिया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इक्वल रूट्स है तो दैट रूट विल बी -b/2 ये एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब हमने सेकंड स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट प्रूव करने में कहीं ना कहीं जगह पे यूज किया है। सो तब हमारा आंसर ऐसा होगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब यूज कर रहे स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 प्रूव करने में तो ये कंडीशन लगेगा। आपको ऐसा 4 ऑप्शन आएगा जनरली। तो देखो ऐसा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये हो सकता है। और दूसरा इधर आएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आएगा, यही फर्क है। देखो इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट है। और तीसरा होगा स्टेटमेंट 1 सही है स्टेटमेंट 2 गलत है, या स्टेटमेंट 2 गलत है स्टेटमेंट 2 सही है स्टेटमेंट 2 गलत है, या स्टेटमेंट 1 सही है, ऐसा आएगा। इधर स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, इधर स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट 1 रॉन्ग। ओके, ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा को क्या है यार, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये फर्स्ट या सेकंड में ही होगा। और सेकंड वाला स्टेटमेंट को मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करने में यूज किया है। इधर देखो ये वाला इक्वल रूट्स का हमने यूज किया, तो स्टेटमेंट 2 यूज हुआ है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इधर स्टेटमेंट 1 दिया है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब दोनों का बीच में डिफरेंस जो है वो 1 है, सीधी सी बात है। सो हमने अल्फा माइनस बीटा का अभी फार्मूला लिया था, डिफरेंस ऑफ द रूट्स विल बी अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपन मॉड ए। सो वो हमने फार्मूला यूज करने वाला है। और इधर देखो ए बी सी आड इंटीजर्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो हो जाएगा। चलो उसको प्रूव करते हैं हमने। अब देखो पहला इक्वेशन लिया था, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है तो उसका बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। सो अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपन मॉड ए वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 हो गए। अब देखो इसमें से ए वैल्यू 1 था, ए वैल्यू 1 रखो, बी के जगह पे -b, सी एज इट इज देखो इसमें रख देता हूँ मैंने, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एज इट इज -b का होल स्क्वायर कर तो भी वापस प्लस बी आएगा, माइनस ए वैल्यू 1 है तो -4c बाई ए वैल्यू 1 रख दिया इज इक्वल 1। ओके, सो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4c 1 है तो बी स्क्वायर -4c भी 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 प्रूव हो गए। और इधर देखो एक किधर भी हमने स्टेटमेंट 2 को यूज किया नहीं किया देखते। अब देखो ये स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका रूट्स ग्रेटर देन 0 है, वो प्रूव करना है। देखो अब देखो ये उसका डिस्क्रिमिनेंट ले लिया मैंने, मतलब रूट्स का फार्मूला ले लिया, -b + r अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो इधर डिस्क्रिमिनेंट में ये a - b होल स्क्वायर जैसा है, a 4ab, देखो a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab है, वैल्यूज डाल दिया बेटा। इधर a के जगह पे 4abc है, b के जगह पे b स्क्वायर -4ac है, c के जगह पे -c है, सारे वैल्यूज मैंने डाल दिया। अभी इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर, देखो ये माइनस को मैंने मल्टीप्लाई करके थोड़ा प्रॉपरली अरेंज किया, 4 एस्टीज रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एस्टीज रखा। इधर देखो 2b है, b इंटू बी स्क्वायर रख दिया, और एक दूसरा 4 को ac को जोड़ दिया, 4ac। अब देखो इधर a के जगह पे क्या है बेटा, a - b होल स्क्वायर, देखो a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसे है, a के जगह पे b स्क्वायर है, b के जगह पे 4ac है, ऐसे देखो a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके,
सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab को हमने लिख सकते a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस ये हो गया, सेकंड स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट को प्रूव करने में कोई मदद हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट अलग था, पहला स्टेटमेंट भी कंप्लीटली अलग था। दोनों सही है बट एक दूसरे का किधर भी यूज नहीं हुआ है। अब देखो मैंने इक्वेशन का पूरा रूट्स फाइंड किया था, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, रूट और स्क्वायर हटा दिया, बी स्क्वायर प्लस 4ac बचेगा, ये हो जाएगा 4a माइनस अंदर लेके आया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर। वैसा जरूरत तो नहीं है बट मैंने फाइंड किया था। x इज इक्वल 1/b, x इज इक्वल दूसरा आएगा माइनस b बाई 4ac आएगा। दो अलग अलग रूट्स आए, सो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है। सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में बोला था डिफरेंस 1 है, स्टेटमेंट 2 में बोला था ए बी सी आर आड इंटीजर्स ऐसा, उसके बाद उसका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसका हमारा को किधर भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों सही है, सही होने के बावजूद सेकंड वाला का फर्स्ट वाला का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब देखो इधर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, इसका मतलब ये तीन नंबर से एक दूसरे का इक्वल नहीं है और a बड़ा है, b मिडिल है और c छोटा है। और एक कंडीशन भी दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल 3abc। ये कंडीशन सभी को आना चाहिए, इसके ऊपर एक फार्मूला है। देन a क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट अपोजिट एंड अनदर रूट नेगेटिव रियल रूट। देखो हैज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट, मतलब दो रूट्स इसका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। जब भी रूट्स का साइन का डिस्कशन आया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाई ए। इनके c बाई ए वैल्यू पॉजिटिव आया तो दोनों का दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकता है या दोनों का दोनों पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है। सो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा। सो c बाई ए पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स हैविंग सेम साइन। इनके c बाई ए नेगेटिव है तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। और इधर दूसरा, इधर क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अपोजिट साइन है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेस देन 0, ये तो ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा क्योंकि दो रूट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट करे तो कंपलसरी नेगेटिव आएगा। इधर सम ऑफ द रूट्स क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि बेटा दो रूट्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर छोटा है तो नेगेटिव नंबर बड़ा है तो दोनों का सम करे तो नेगेटिव आएगा। बट इधर आपको एक देखना पड़ेगा बेटा, इधर मॉड्यूलस दिया है। देखो मॉड्यूलस को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है। दोनों रूट्स इक्वल एंड अपोजिट है तो 0 भी हो सकता है, या दोनों का मान लो इक्वल नहीं है तो हमेशा ग्रेटर देन 0। मतलब स्टेटमेंट 2 बराबर ही है, इसका कोई देखने का जरूरत ही नहीं है। बट स्टेटमेंट 1 हम देखने का, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव बोल रहे हैं, चलो आएगा नहीं आएगा देखते हैं। अब देखो ये कंडीशन दिया बेटा, ये कंडीशन दिए तो आपको एक कंडीशन आएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc है तो कंडीशन ये है ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी होगा या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 होगा। बट क्वेश्चन में दिया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जी सी, तो ये कंडीशन नहीं लेने का। ओके, जब भी आपको देखो बेटा ये फार्मूला देता है इज इक्वल 3abc होता है तो ये इज इक्वल बी इज इक्वल सी होगा। इसका प्रूफ हमने पहला थ्योरी ऑफ इंडिसेस में प्रूव किया था। ओके, तो ये वाला हो सकता है या ए वाला हो सकता है। सो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, सो हमारा को यही लेना पड़ेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 लिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो एक्स के जगह पे क्या रखे तो ये आता है बेटा सम्मा ऑफ द कोफिशिएंट्स। सीधा देखो सम्मा ऑफ द कोफिशिएंट 0 होगा, सम्मा ऑफ द कोफिशिएंट 0 है तो एक्स इज इक्वल 1 इज ए रूट। ओके, सो एक रूट तो मिल गया। देखो सम ऑफ द कोफिशिएंट x इज इक्वल 1 रूट हो गया, सो सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है तो x इज इक्वल 1 इज ए रूट, सो अल्फा इज इक्वल 1 आया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं, सो अल्फा इनटू बीटा, तो c बाई ए। और क्वेश्चन में बोला है बेटा एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो c बाई ए नेगेटिव होना चाहिए। ओके, c बाई ए नेगेटिव होना चाहिए, तो वो होगा नहीं होगा वो देखते हैं। नेगेटिव है तो सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही होगा। नेगेटिव नहीं है या नेगेटिव पॉजिटिव डिटरमिनेट नहीं कर सकता है, स्टेटमेंट 1 गलत होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बेटा c अपॉन ए। अब देखो ये कंडीशन में से a से डिवाइड करो बेटा, a को नीचे लाया तो c अपॉन ए वैल्यू लेस देन 1 होगा।
कोई भी नंबर लेस देन 1 है तो वो नंबर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो 0 के नीचे आया तो वो नेगेटिव होगा, या 0 का 1 का बीच में आया, देखो ये 1 के नीचे बोल रहे, ऐसा जरूरी नहीं कि 0 के नीचे आएगा या नेगेटिव आएगा। सो 1 के नीचे पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है। सो ये कंडीशन के हिसाब से हम वी कैनॉट डिटरमाइन, वी कैनॉट कंक्लूड दैट द रूट्स आर हैविंग सेम साइन या अपोजिट साइन, क्योंकि देखो सेम साइन है तो पॉजिटिव हो सकता है, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने डिटरमाइन नहीं कर सकते वो दिया हुआ कंडीशन से। सो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव ऐसा हमने बोल नहीं सकते, क्योंकि पूरा क्लैरिटी नहीं दिया है, बस हम आपको इतना ही दिया है, इससे नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ऑफ द रूट्स हमको पता नहीं चलेगा। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत होगा, स्टेटमेंट 2 सही होगा। देखो इसका रूट से देखो बेटा अपोजिट साइन है, if roots are of opposite sign then अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, ऑलरेडी इसको हमने बोला था मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0। स्टेटमेंट 2 सही है, देखो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओके, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एसेंट के परिवार की तरफ से सबको आभार। Thank you, students.